So dear students, welcome back. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे about another important concept, that is the polarizability ellipsoid of water molecule. So आज हम देखेंगे water molecule में हम कैसे polarizability ellipsoid ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमें बता देगा about the polarization of वाटर मॉलिक्यूल। और हम देखेंगे कैसे वाटर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन अराइज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके वाटर के कौन कौन से, इफ वी टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस, कौन कौन से वाइब्रेशंस वाटर मॉलिक्यूल में आपका रमन एक्टिव हो सकते हैं। तो ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसको आगे डिस्कस करने से पहले let's revise some important point which we have discussed in yesterday lecture। तो हम यहाँ से थोड़ा हम रिवाइज करेंगे कि कल हमने रमन इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन हमने निकाला था, डिराइव किया था, जिसमें हमारा म्यू जो है दैट इज द पोलराइजेशन इज इक्वल टू दैट इज अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई mu vibration t into, we have another term that is E naught into sine 2 pi mu into t। So ये हमारे पास कल हमने इक्वेशन डिराइव किया था, जो कि हमें बताता है अबाउट द रमन इफेक्ट, और आई कैन से द पोलराइजेशन इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू। नाउ वी हैव, हमारे पास दो पार्ट है, दो टर्म है, एक हमारे पास ये टर्म है, दूसरा हमारे पास ये वाला टर्म है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो ये वाला टर्म हमारा जो है वो है पोलराइजेशन ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, changing electric field, which means that the electromagnetic radiations we are using in case of Raman spectroscopy, that particular electromagnetic radiation contains electric field with changing electric field. So it means the frequency of that electric field in the electromagnetic radiation is not constant, means it is changing with time. And the second term, that is the first term here, which we have is the, I can say this is the polarizability due to internal motion. Internal motion. So here internal motion can be vibration or rotation. So both rotation and vibration can, I can say हमारी जो polarization है या polarizability में ये भी अपना contribution produce करते हैं। So the overall polarization of a molecule depends on the two important factors. The one is the internal motion, whether it can be vibration or rotation, and the second factor is the frequency of the electric field, which can not be static in case of electromagnetic radiation. इसके बाद further हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारा if b that is the beta is equal to 0, here this beta is the rate of change of, I can say, the polarizability, yeah, I can say rate of change of polarizability with respect to change in the internal motion, that is the vibration of the or rotation of the molecule. अगर हमारे पास अगर बीटा is equal to 0 है, बीटा अगर 0 होने का मतलब ये है कि हमारा internal motion जो है, internal motion is not contributing to polarization. पोलराइजेशन, अब आपके इंटरनल मोशन पोलराइजेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट मींस आपका जो पोलराइजेशन होगा वो wholly due to the change in the electric field of the electromagnetic radiation. Then our equation will be alpha naught E naught sine 2 pi mu t, that this mu is the frequency of our electromagnetic radiation. Now this term will be equal to 0 because we are considering beta is equal to 0. That means the internal motion, contribution of internal motion towards the polarization of the molecule is equal to 0. Now this equation tell us wholly about the Rayleigh scattering. ये हमारा Rayleigh scattering के बारे में हमें
बताता है रिले स्कैटरिंग. इट मींस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज स्ट्राइकिंग द मॉलिक्यूल and without producing any further without changing the energy of that radiation, the radiation scatters from the molecule. So this equation wholly tells us about the relay scattering. Now the important point here is that for a molecule, किसी भी molecule को, आपके पास कोई भी molecule है, to be Raman active, किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए योर बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0. आपके पास जो बीटा है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरनल मोशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये आपका 0 होते हैं देन योर मॉलिक्यूल विल नॉट बी रमन एक्टिव. सो किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए, रमन एक्टिव होने का मतलब है रमन स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए आपका बीटा जो है 0 नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई आपका रमन इफेक्ट, आपका ये वाला जो पहला हमारा लेट्स टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. सो आपके इक्वेशन नंबर को वैलिडली फॉलो करना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के. ना यहां तक हमने कल देखा था. और अगर कोई भी आपके मॉलिक्यूल रमन एक्टिव हैं तो रमन एक्टिव होने के बाद हम कहते हैं कि वो पोलराइजेबिलिटी दिखा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो रहे हैं. और उस पोलराइज को हम एक मैथमेटिकल डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड. पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड. और ये जो डायग्राम है हमें पोलराइजेबिलिटी दिखाता है. मॉलिक्यूल अगर आपका पोलराइज हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में पोलराइज हो रहे हैं, तो वो सब हम एक एलिप्सॉइड के थ्रू हम इसको दिखाते हैं. एलिप्सॉइड मींस हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारे पास बिल्कुल एक की शेप की तरह होगा. तो ये हमारे पास एक पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड है जो कि हमारा पोलराइजेशन दिखाता है कि मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में हो रहे हैं. तो ये जो आपका इस साइड वाला एक्सिस है इसको हमने मेजर एक्सिस कहा था और ये हमारा माइनर एक्सिस होता है. अब यहाँ पे हमारे ये जो शेप ऑफ द एलिप्सॉइड है वो आपकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को शो करते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इस एक्सिस में ये वाला एक्सिस हमारा या रेडियस ऑफ दिस एलिप्सॉइड इज लेसर एज कंपेयर टू द रेडियस इन दिस डायरेक्शन. इट मींस जितना आपका जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना इसका क्या होगा, रेडियस कम होंगे. इट मींस इस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन ज्यादा हो रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका रेडियस या जो लेंथ है ज्यादा है एलिप्सॉइड का. इट मींस इस डायरेक्शन में आपका पोलराइजेशन कम हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन. तो ये दोनों आपका इस तरह हमने एक रिलेशन दिखाया था, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AI. जितना आपका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना रेडियस कम होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जितना आपका कम पोलराइजेशन होंगे उतना आपका ये क्या हो रहा है, आपका पोलराइजेशन नहीं हो रहा है. तो ये दो इंपॉर्टेंट मेजर एंड माइनर एक्सिस के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब आगे हमें देखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए, तो हमने कहा फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बीटा 0 के बराबर नहीं होंगे. इट मींस इसका मतलब क्या है कि देयर, मैं कह सकता हूं देयर शुड बी चेंज आइदर इन द मैग्नीट्यूड or direction of polarizability ellipsoid. अब आप क्या कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड आप ड्रॉ करेंगे और उस पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को देख के आप बता सकते हैं कि मेरे ये वाला मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल में ये वाला पार्टिकुलर वाइब्रेशन या रोटेशन या आपका इट कैन बी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, कि ये सब आपका जो वाइब्रेशन और रोटेशन है
वो रमन एक्टिव होंगे या नहीं होंगे हम बता सकते हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड्स को देख के। अब आपके पास फॉर एग्जांपल अब आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और मॉलिक्यूल में आपका इलिप्सॉइड आप ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो इलिप्सॉइड है, एक ये वाला इलिप्सॉइड है जो कि थोड़ा क्या है, बड़ा है, और आपका एक इलिप्सॉइड है जो कि थोड़ा छोटा है। अब ये जो साइज है, ये साइज इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द इलिप्सॉइड, the size of the ellipsoid will tell you about the will tell you about the क्या बता देगा, ये आपका मैग्नीट्यूड कि कितना आपका पोलराइजेशन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, वो आपको बता देगा साइज ऑफ द इलिप्सॉइड। इट मींस अगर आपकी इलिप्सॉइड की साइज जो है, ये देखो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ये वाला इलिप्सॉइड आपका बड़ा है, बिगर है, और ये वाला इलिप्सॉइड आपका स्मॉलर है। इट मींस जितना आपका इलिप्सॉइड छोटा होगा उतना आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज हाई। सो मैग्नीट्यूड इज हाई, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है पोलराइजेशन का। और अगर आपकी इलिप्सॉइड का साइज बड़ा है, इट मींस द मैग्नीट्यूड इज लो। सो इसी के बेसिस पे आगे हम देखेंगे। अब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इलिप्सॉइड ड्रॉ करेंगे। पहले आज हम वाटर के बारे में देखेंगे, वाटर के वेदर इट इज वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सबका हमें क्या करना है, इलिप्सॉइड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि साइज ऑफ दिस इलिप्सॉइड विल टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन। जितना साइज छोटा होगा उतना आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जितना इलिप्सॉइड का साइज बड़ा होगा उतना आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन विल बी लो। तो ये आपको ध्यान देखना है, और हम उसी के बेसिस पे कि कितना किस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, वो हम इलिप्सॉइड के थ्रू हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। और अगर साइज ऑफ द इलिप्सॉइड चेंजिंग, अगर आपकी इलिप्सॉइड की साइज चेंज हो रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट वाइब्रेशंस में, इट मींस आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन इज चेंजिंग, मींस हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव। इसके साथ साथ आपका इलिप्सॉइड का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर आपकी इलिप्सॉइड का डायरेक्शन इस साइड में है तो वो डायरेक्शन इस साइड में हो सकता है, वो डायरेक्शन इस टिल्टेड साइड में हो सकता है। इट मींस if the direction of the ellipsoid is changing, then it is also we can say that the molecule or that particular vibration or rotation or are Raman active। हम क्या कह सकते हैं, रमन एक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है कि किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए बीटा 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस वहां पे जो इंटरनल मोशन है वो पोलराइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा हो रहा है, कितना किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, वो हम साइज ऑफ द इलिप्सॉइड के अकॉर्डिंग उसको दिखा सकते हैं। और द साइज ऑफ द इलिप्सॉइड विल टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर polarization, as well as if there is a change in the direction of the ellipsoid, then we can also say that that particular molecule is Raman active. Now let's come to the water molecule। अब हम एक्चुअल केस पे आते हैं वाटर मॉलिक्यूल पे। वाटर मॉलिक्यूल के हम डिफरेंट वाइब्रेशंस देखेंगे कि कौन कौन से वाइब्रेशंस रमन एक्टिव हैं या नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल मींस वी हैव H2O। अब पहले हम रोटेशन को छोड़ते हैं, हम पहले वाइब्रेशन को देखते हैं। तो जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 किस्म के वाइब्रेशन हो सकते हैं। कितने किस्म के वाइब्रेशन हो सकते हैं, 3 किस्म के वाइब्रेशन हो सकते हैं, जिसमें आपका पहला जो होगा वो होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, एक तो आपका स्ट्रेचिंग जो होगा वाटर मॉलिक्यूल में वो स्ट्रेचिंग होता है। दूसरा आपके पास जो स्ट्रेचिंग होते हैं वो आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होते हैं। एंड फाइनली वी हैव बेंडिंग
वाइब्रेशंस। तो ये 3 पर्टिकुलर वाइब्रेशंस हमारे वाटर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, इट इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग ए बेंड शेप। आपका वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होता है बेंड होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में से कौन सा वाइब्रेशंस आपका रमन एक्टिव होंगे और कौन सा वाइब्रेशन रमन एक्टिव नहीं होंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं with the shape of your water molecule। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशंस, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो पहले हम 3 डायग्राम ड्रॉ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, शेप है या ज्योमेट्री है। अब ये आपका एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली स्ट्रेच कर सकते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो सकते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग 2 किस्म से हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैसे वाटर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकते हैं। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऐसे हो सकते हैं कि दो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे इस तरह। ये दोनों, इस एरो से मैं बॉन्ड की स्ट्रेचिंग को दिखा रहा हूं कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और कार्बन की, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकली बाहर की ओर स्ट्रेच हो रहा है। इट मींस द बॉन्ड लेंथ बिटवीन योर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग। तो इसको एक हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कह सकते हैं कि दोनों बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ये हो सकता है दोनों जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो अंदर की ओर कंप्रेस करे। एक आपका स्ट्रेचिंग हो गया, दूसरा आपका ये दोनों कंप्रेस हो गए, टुवर्ड्स ऑक्सीजन चले गए। अब ये दोनों बॉन्ड एक टाइम बराबर चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से आपकी एलिप्सॉइड पे या द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम देखेंगे, हम इस वाले वाइब्रेशन की हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ दी polarizability ellipsoid of the symmetric stretching। अब हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सो किसी भी सिमेट्रिक जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं, या जो आपका मॉलिक्यूल पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल मोशन भी है, उसके तरह दोनों की वजह से आपका एक एलिप्सॉइड बनेंगे। एलिप्सॉइड मींस द मॉलिक्यूल इज नाउ पोलराइजिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो बाहर की ओर नहीं आएंगे। इट मींस ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसका अपना एक क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं ये बनाता हूं, दिस इज द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिप्सॉइड आ गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल मुझे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो दिखा रहे हैं वो मेरा बॉन्ड जो है इलोंगेट हो रही है। अब बॉन्ड इलोंगेट होने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से आपका ये बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या होगा कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से या सिमेट्रिक इलोंगेशन से मेरा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे वो हम देखेंगे। तो उसी की बेसिस पे हमारा क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड भी बनेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो इलोंगेट हो रहे हैं। अब उससे क्या होगा, जितना आपका बॉन्ड इलोंगेट होंगे उतना ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए और भी स्पेस अवेलेबल हो रहे हैं मूवमेंट के लिए अवेलेबल स्पेस बन रहा है। और मैं कह सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या हो रहा है, लूजली बॉन्ड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। अब जितना मैं बॉन्ड को स्ट्रेच करूंगा उतना न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होंगे, कम होंगे।
तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सकते हैं, एक दूसरा, इसकी मूवमेंट के लिए स्पेस और भी ज्यादा अवेलेबल है। इट मींस इन केस ऑफ दिस सिमेट्रिक इलोंगेशन द मॉलिक्यूल विल मोर पोलराइज, ये मॉलिक्यूल और भी आसान से क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा पोलराइज होंगे उतना मेरी पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की साइज क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। So the size of this polarizability ellipsoid is giving the magnitude of the degree of polarization. जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना साइज इसका छोटा होगा। तो सिमेट्रिक इलोंगेशन से मेरा पोलराइजेशन ज्यादा हो रहे हैं, इट मींस इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में मेरा पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की साइज क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि साइज ऑफ द इलिप्सॉइड एंड द इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स बढ़ेंगे। कभी भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स की साइज और पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट की साइज ज्यादा बढ़ेंगे, उसकी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड की साइज करेंगे। इट मींस जितना छोटा साइज गढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल और भी ज्यादा पोलराइज हो रहे। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन में, अगर आपका सिमेट्रिक कंप्रेशन होते हैं, अब यहाँ पे बॉन्ड जो है दोनों अंदर कंप्रेस हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं और भी स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ योर ऑक्सीजन एंड द न्यूक्लियस ऑफ योर हाइड्रोजन, and also the space available for these two electron to move on is decreasing. अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, स्पेस जो है मूवमेंट के लिए डिक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, जितना आप इलेक्ट्रॉन को पास ले जाएंगे न्यूक्लियस की, वहां पे उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसका पोलराइजेशन क्या होगा, कम होंगे एज कंपेयर टू योर, I can say as compared to your equilibrium as well as your elongation, symmetric elongation mode. अब इसमें अगर मुझे पोलराइजेशन इलिप्सॉइड ड्रॉ करना है, तो मेरा पोलराइजेशन इलिप्सॉइड की साइज क्या होंगे, बढ़ेंगे। The size of the polarization ellipsoid will increase. अब जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, इसका मतलब है कि आपकी पोलराइजेशन की मैग्नीट्यूड क्या है, उतना छोटा है। तो मैं ऐसे इसकी पोलराइजेशन इलिप्सॉइड ड्रॉ कर सकता हूं। अब मुझे अगर इन तीनों में कंपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होंगे, आपकी सिमेट्रिक इलोंगेशन में होंगे, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इसके बाद आपकी इक्विलिब्रियम वाले मोड में होंगे, और फाइनली आपकी सिमेट्रिक कंप्रेशन में होंगे। तो ऐसे हम इलिप्सॉइड को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं इन तीनों इलिप्सॉइड को अगर मैं देखूं, तो क्या हो रहा है, द साइज ऑफ द इलिप्सॉइड इज चेंजिंग, the size of the ellipsoid is changing. It means the magnitude of the polarizability is changing. अब मेरे पास रमन एक्टिव होने के लिए मेरे पास ये कंडीशन था कि बीटा इज शुड बी नॉट इक्वल टू 0, बीटा आपका इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे साइज ऑफ द इलिप्सॉइड इज चेंजिंग। इफ द साइज ऑफ द इलिप्सॉइड इज चेंजिंग, इट मींस द डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन इज चेंजिंग। इट मींस आई कैन से all the three these vibrations of this, it means the symmetric stretching vibration of this water molecule is Raman active. इसको मैं कह सकता हूं कि ये रमन एक्टिव है, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन चेंज हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन को मैं इसलिए देख सकता हूं कि size of this polarizability ellipsoid is changing. So यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि symmetric stretching of water molecule is Raman active. तो ये हो गया हमारा symmetric stretching of water molecule के बारे में। अब आते हैं asymmetric stretching। अब asymmetric stretching को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, asymmetric stretching को भी मैं कंपेयर करूंगा with the equilibrium position of this water molecule. अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस दोनों ब्रांच, दोनों बॉन्ड जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बराबर है। अब मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आपको कैसे दिखा सकता हूँ,
एसिमेट्रिक मीन्स कि आपका स्ट्रेचिंग जो है बराबर नहीं है। स्ट्रेचिंग अगर आपका बराबर नहीं है तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। इस केस में मैं इस वाले बॉन्ड को इलोंगेट करता हूं और इस वाले बॉन्ड को मैं क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं, शॉर्टन। तो ये वाला बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की ओर मूव हो रहे हैं और ये वाला बॉन्ड आपका हाइड्रोजन की ओर मूव हो रहे हैं। तो एक तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं। दूसरा मैं दिखा सकता हूं, इस वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं कंप्रेस कराता हूं, इस वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं इलोंगेट करता हूं। इट मींस यहाँ पे एसिमेट्रिक मींस दोनों बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में, एक कंप्रेस हो रहा है, एक मेरा इलोंगेट हो रहा है। दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मींस ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में अगर अब मैं एलिप्सॉइड बनाऊं तो मेरा एलिप्सॉइड कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं इसी तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पहला वाला एलिप्सॉइड था उसी के बराबर मैं इस तरह एलिप्सॉइड ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दिस इज द, इट मींस दैट दिस मच पोलराइजेशन इज occurring in case of water molecule when this is at their equilibrium position। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड मेरा स्ट्रेच हो रहा है और ये वाला बॉन्ड मेरा कंप्रेस हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो रहे हैं, या द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ दिस बॉन्ड इज लेस। इट मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका लूजली बॉन्ड है। However, the interaction between the nucleus and the electron in this particular bond is less, the less space are available, or I can say these electrons are strongly interacted by the nucleus of this oxygen and hydrogen। it means ये हमारा पोलराइज इजीली नहीं होगा, लेकिन ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन इजीली पोलराइज होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ये दोनों लगभग बराबर रहेंगे, उसी तरह ये भी बराबर रहेंगे। द साइज विल रिमेन सेम, बट आई कैन शो नाउ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इन दिस डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही मॉलिक्यूल मोर पोलराइज हो रहे हैं एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। एंड आई कैन से द साइज आर रिमेनिंग सेम, क्योंकि ये अगर स्ट्रेच होके इससे ज्यादा पोलराइज हो रहे तो ये कंप्रेस होके इन दोनों को बराबर कर रहे हैं। इसके केस में ये वाला बॉन्ड इलोंगेट हो रहे हैं, तो मेरा पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इस डायरेक्शन में इसको मैं अलाइन करा सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, I can draw this polarizability ellipsoid this way. The size will remain same, but the direction of the polarization or polarizability ellipsoid is changing. Again, अगर मेरे से कोई पूछे कि asymmetric stretching mode Raman active होंगे या नहीं होंगे, I can say that the asymmetric stretching is also Raman active. How I can say this? Although the size of the polarizability ellipsoid is remaining same, मेरा यहाँ पे साइज बराबर रह रहा है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मैं इसलिए इसको रमन एक्टिव कह सकता हूँ क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इज चेंजिंग। सो मेरे पास दो कंडीशन चाहिए था रमन एक्टिव होने के लिए, या तो मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए था या मेरा डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था। यहाँ पे मेरा क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ polarization or polarizability is changing। That's why I can say that the asymmetric stretching is also Raman active in case of water molecule। तो यहाँ पे ये आपका water molecule की ये जो asymmetric stretching है स्पेक्ट्रम में आप इसको देख सकते हैं। Now let's come to the bending vibration। अब बेंडिंग वाइब्रेशन भी मेरा, मैं यहाँ से यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को मैं बिल्कुल लीनियरली दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा ये बेंड होते हैं तो दो तरीके से मेरा ये बेंड हो सकता है। तो ये मेरा बेंड हो गया इस साइड में, जिस तरह हमारा बेंड शेप है वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये मॉलिक्यूल मेरा हाइड्रोजन दोनों इस तरह बेंड हो रहे हैं। अब मेरा क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, ये बेंड वापस अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक तो इस तरह मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। अब ये जो हाइड्रोजन है वापस अपने जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे भी तीन स्ट्रक्चर आ गया।
अब मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को जब मेरे पास लीनियर है तो क्या होंगे, ये जब मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये जो बॉन्ड एक्सिस है वो इसके पैरेलल में है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ये क्या होंगे, पोलराइज होंगे। तो इजीली मैं यहाँ पे इसकी क्या बना सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइक दिस। अब ये मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखा रहा हूं जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ऐसा है। अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को मैं बेंड करता हूं तो इससे इसकी पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो जैसे ही मैं इसको बेंड करता हूं और यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को छोड़ के तो नहीं आ सकता, लेकिन ये बॉन्ड इस तरह थोड़ा मूव कर सकते हैं। एज कंपेयर टू दिस वन द polarization will be lesser in case of these bending structure। तो जितना कम पोलराइज होंगे द साइज ऑफ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड विल इंक्रीज। तो मैं ऐसे इसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को ड्रॉ कर सकता हूं। तो इट मींस द साइज इज बिगर इन दिस केस, इट मींस द पोलराइजेशन इज लेसर इन दिस केस। अब जैसे मैं यहां से मूव करता हूं इस वाले केस में, तो ये बेंड से वापस अपनी 180 डिग्री पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये और वापस आ जाएंगे द पोलराइजेशन विल बी हायर इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस कंप्लीटली बेंड स्ट्रक्चर। सो द पोलराइजेशन the size of the polarizability ellipsoid will little be, I can say little be higher as compared to the one in which the molecule is in complete bend shape। तो मेरा ऐसे तीन पोलराइजेशन स्ट्रक्चर बन सकता है, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बन सकता है। इसमें सबसे स्मॉलर साइज मेरा ये है, इसके बाद थोड़ा इसमें बढ़ जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई कैन से द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन is higher in case of one than in case of two, and the least polarizable will be my third structure in which the molecule is completely bent। अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, the size of the polarizability ellipsoid is changing। If the size is changing, then I can say the magnitude is changing। The magnitude means the ease with which the molecule is polarizing. If the magnitude is changing, therefore I can say the bending vibration is also Raman active। तो bending vibration water की केस में मेरा क्या है, Raman active है। That's why I can get the spectrum of these molecules in case of Raman spectroscopy। तो ये था आपकी तीन किस्म के वाइब्रेशंस वाटर मॉलिक्यूल में, और कौन कौन से वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल all the three, whether I can say the symmetric stretching or asymmetric stretching as well as bending vibrations are Raman एक्टिव। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाइब्रेशंस या कौन सा जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन है वो रमन एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये था आपका वाटर की पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉइड के बारे में। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान देखना है, एक तो साइज ऑफ द पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉइड जो कि आपको बता देगा कि जितना छोटा साइज होगा उतना वो मोर पोलराइजेबल होंगे, जितना बड़ा साइज होंगे उतना वो लेस पोलराइजेबल होंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो आपका width of the size of the polarization is inversely proportional to the degree of polarization। जितना ज्यादा पोलराइज होंगे उतना एलिप्सॉइड की साइज कम होंगे। सो ऐसे आप वाटर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ड्रॉ कर सकते हैं, और उस शेप और डायरेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड, from there you can tell whether that particular vibration is Raman active or Raman in। So ये था all about the polarizability of ellipsoid of water molecule। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी